ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ الذی جعل دینہ و تمام النعمت بولایت علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والشریعت والاحکام والسجود والقیام والمحبت والعرفان. مولانا و مولا القونین التقیان بینہما برزخ لا یبغیان. صاحب ذوالفقار و امام المختار الذي سمتني على ام حیدر وساکم الحوض کوثر. مطلوب کل طاہر غالب لا کل غالب النجم الثاقب. حبه فرضا على حاضر والغائب. مولانا علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام. وقال امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام: من زار اللہ حسین بکربلا من زار اللہ بعرش الصلوات. عزیزان محترم، عزادار سید الشہداء، میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا، اس میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ من زار اللہ حسین بکربلا من زار اللہ بعرشہ، کہ جس نے امام حسین کے روضے کی زیارت کی ایسا ہے جیسے اس نے عرش اعظم پر خدا کی زیارت کی. میں کیا عرض کروں، ذرا غور کیجیے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے امام حسین کے روضے کی زیارت کی ایسا ہے کہ جیسے اس نے عرش اعظم پر خدا کی زیارت کی. آپ نے غور کیا، اللہ نے امام حسین کی زیارت کا ثواب اس لیے اتنا زیادہ رکھا کیونکہ جتنی قربانی امام حسین نے دی کسی نے نہیں دی. امام حسین کے پاس جو کچھ تھا، اپنے بھائی بیٹے گھر جان مال، امام حسین کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے قربان کیا. کہا پروردگار تیرے لیے، پروردگار تیرے لیے، پروردگار تیرے لیے. آواز قدرت آئی، اللہ نے پلٹ کے کہا حسین جب تم ہمارے لیے تو دنیا ساری تمہارے لیے. حسین جب تم ہمارے لیے تو دنیا ساری تمہارے لیے. ارے جنت ہے کربلا کا تقاضا ہے انقلاب، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے. سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے. صلوات پڑھے بر محمد. یہ کربلا کی سرزمین کوئی ایسی ویسی سرزمین نہیں ہے. یہ کربلا کی سرزمین دولتوں کی سرزمین ہے. یہ کربلا کی سرزمین تمناؤں کی سرزمین ہے. یہ کربلا کی سرزمین عقیدے کی سرزمین ہے. یہ کربلا کی سرزمین دولتوں کی سرزمین ہے. اس فرش اعزاز سے، اس در سے جس کو عقیدت ملتی ہے وہ کربلا جاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجیے گا. اس فرش اعزاز سے جس کو عقیدت ملتی ہے وہ کربلا جاتا ہے. جسے حبیب چاہتا ہے اور جسے حسین بلاتا ہے وہی کربلا جاتا ہے، ورنہ سب کے قدم یہاں نہیں آیا کرتے. عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی آسمانوں کی سیر نہیں کی. لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی آسمانوں کی سیر نہیں کی. میں ان سے کہوں گا ایک مرتبہ کربلا معلیٰ میں بین الحرمین میں جا کے دیکھو. ایک جنت عرش پر ہے، ایک جنت فرش پر. عرش والی تو فرشتوں کی نگہبانی میں ہے اور زمین والی علی اکبر کی نگرانی.
اکبر کی نگرانی میں ہے۔ یہ کربلا کی سرزمین کوئی ایسی ویسی سرزمین نہیں ہے۔ کربلا سب کے مقدر میں نہیں ہوتی، کربلا بھاگنے والوں کے مقدر میں نہیں۔ گر ہتھیلی پہ نہیں، جان تو مت آؤ یہاں، اور تبرے سے پریشان تو مت آؤ یہاں، تم نہ ہو الفت سفیان تو مت آؤ یہاں، تم بھی تینوں پہو قربان تو مت آؤ یہاں۔ ارے ہے اکبر کی زمین، حق کی حمایت ہوگی، جس نے چھینا ہے بدک اس پہ بھی لعنت ہوگی، جس نے چھینا ہے بدک اس پہ بھی لعنت ہوگی۔ عزیزان محترم، آپ مسلسل مجلسیں کرتے آ رہے ہیں، آپ مسلسل علم اٹھاتے آ رہے ہیں، آپ مسلسل تعزیے اٹھاتے آ رہے ہیں، آپ کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، مومنوں کے دل جلے ہوئے ہیں، مومنوں کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ آگ کیوں نہ لگے، کیسے نہ لگے؟ سنا نہیں رسول نے کیا کہا؟ رسول فرماتے ہیں ان لقتل الحسین فی حرارت قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ رسول فرماتے ہیں قتل حسین کے بعد مومنوں کے دل میں ایسی آگ لگی ہے جسے دنیا کی کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ لوگوں کے دل جلے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ عزیزان محترم، امام حسین کا ذکر عباس کے ذکر کے بنا ادھورا ہے، اور عباس کا ذکر حسین کے ذکر کے بنا ادھورا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ عباس کو نکال کے دیکھو تو کربلا، ایسا لگے گا جیسے کہ خالی مکان ہے، ایسا لگے گا جیسے کہ خالی مکان ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، دنیا کا دستور ہے کہ ہر بہادر جب جنگ کرنے جاتا ہے تو سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنی آتم سرکشا کے لیے دو چیزیں لے کے جاتا ہے۔ ہر بہادر جب جنگ کرنے جاتا ہے تو دو چیزیں لے کے جاتا ہے، ایک تلوار، دوسری ڈھال۔ تلوار تو آپ نے دیکھی ہے، ڈھال وہ ہوتی ہے جس پہ تلوار کا وار روکا جاتا ہے۔ میں کیا آپ کروں، ذرا غور کیجیے گا۔ ہر بہادر جب جنگ کرنے جاتا ہے تو دو چیزیں لے کے جاتا ہے۔ قسم خدا کی جملہ پہنچ گیا تو کیا کیفیت ہوگی؟ ہر بہادر جب جنگ کرنے جاتا ہے تو دو چیزیں لے کے جاتا ہے، ایک تلوار، دوسری ڈھال۔ ہماری تلوار ہے نعرے حیدر اور ڈھال ہے نادر علی۔ ہماری تلوار ہے نعرے حیدر اور ڈھال ہے نادر علی۔ یہ نعرہ ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا درس ہے۔ لیکن یہ نعرے حیدر دشمن علی کے لیے تیز ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، خنجر ہے۔ دشمن علی کے لیے تیز ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، خنجر ہے۔ عزیزان محترم، اب جو جملہ بولوں گا اسے سر اٹھا کے سننا، کیونکہ شیروں کا ذکر شیروں کی طرح سنا جاتا ہے۔ عباس کیسے ملے اور عزادار کیسے ملے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ جس علی نے ساری زندگی ہاتھ ایسے رکھا، جس علی نے ساری زندگی ہاتھ ایسے رکھا، ایسے رکھا، ایسے رکھا، ایسے رکھا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بندہ آیا، مانگی دو روٹی، دے دی اٹھ کی ستار۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، جس علی نے ساری زندگی ہاتھ ایسے رکھا، ایسے رکھا، ایسے رکھا، لیکن جب اس علی نے ہاتھ ایسے کیا ہے تو عباس ملا ہے۔ عباس بن مانگے نہیں ملتا، وہ تو علی کو بھی مانگنے سے ملتا ہے۔ ابھی بھی کہنا پڑے گا، ارے سینہ تان کے چلو کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہو۔ ایک ماں نے تمنا کی تھی، یا الہی مجھے عباس کا بیٹا دے دے، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، چھٹے امام فرماتے ہیں، صلوات پڑھے بر محمد، کہ لعن اللہ من جاہل حق کا، اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو فاطمہ کے لال کی عزت نہ کرے۔ عزیزان محترم، ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے روضۃ المسلمین۔ اس کتاب میں یہ فقرہ ہے کہ حضرت عباس کے نانا کے نانا، نام تھا عبد البدر۔ اگر شجاعت سن سکتے ہو تو سن لیجئے گا۔ لاکھوں کی فوج سے جنگ کرنے گئے، ابھی
उंगलियों में नेजा नचा रहे थे। उस वक्त का मंजर समझने की कोशिश कीजिए। लाखों की फौज एक तरफ, अब्दुल बद्र एक तरफ, लाखों की फौज से जंग करने गए, अपनी उंगलियों में नेजा नचा रहे थे। एक मर्तबा जलाल में आकर जमीन में नेजा गाड़ा, लाखों की फौज खड़ी थी। 3 दिन तक किसी की हिम्मत न हुई कि आगे बढ़ जाता। कसम खुदा की अगर अब्बास को जुल्फकार दे दी जाती तो कयामत आ जाती। इसलिए कि क्या होता उसके हाथ में गर होती जुल्फकार, जब उसने एक नेज़े पे लश्कर उठा दिया। क्या होता उसके हाथ में गर होती जुल्फकार, जब उसने एक नेज़े पे लश्कर उठा दिया। अभी नेज़ा समझा क्या है? और बताओ मैं तुम्हें क्या है जरी का नेज़ा, होगा रजत में ये मालूम के है क्या नेज़ा। अरे नहर पर इसका कहा जाओ हसन देखा है, तुमने नेज़ा नहीं देखा है, अलम देखा है। तुमने नेज़ा नहीं देखा है, अलम देखा है। सर कटा लेना, लेकिन कभी अलम को झुकने मत देना। मरने लगना तो औलाद से कह के जाना कि 2 परचम कभी मत झुकने देना, एक वतन का परचम, एक अब्बास का परचम। अब्बास का परचम बुलंद रखोगे तो हुसैनी बनोगे, अज़ादार बनोगे। वतन का परचम बुलंद रखोगे तो हिंदुस्तानी बनोगे। सर कटा लेना, लेकिन कभी अलम को झुकने मत देना। क्यों? क्योंकि इसलिए कि रब को मंजूर न था परचम इस्लाम झुके, इसलिए लिखा गया हजरत अब्बास का नाम। रब को मंजूर न था परचम इस्लाम झुके, इसलिए लिखा गया हजरत अब्बास का नाम। सलवात पढ़े व मोहम्मद वाला। अली का बेटा है, वो भी मांगी हुई दुआ, जिस अली ने गोदी में पाल कर सानिए हैदर बनाया, जो अली के सामने अली बन के चलता रहा। हैदर अब्बास सुनोगे, सुनो। हजरत अब्बास एक मर्तबा जलाल में आते हैं। जलाल में आने के बाद कहते हैं, ओ शामियों, ओ चलती फिरती लाशों, अगर मेरा आका मुझे इजाजत दे देता तो मैं अपनी उंगलियों में तलवार बना दूंगा। अभी मैंने क्या कहा था, जब भी जंग होती है तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तलवार, दूसरी ढाल। हजरत अब्बास क्या कहते हैं, मैं अपनी उंगलियों पर तलवार बना दूंगा, बस समा व तर्दी और आसमान नोच के ढाल बना दूंगा। जैसे ये इतना कहना था तो जितने शामी थे सब थर थर कांपने लगे। हजरत अब्बास ने कहा, तुम इतने ही में कपकपा रहे हो, कल को मेरी जंग देखकर जिब्रील हैरत में पड़ जाएगा और मलकुल मौत कांपने लगेगा। भाई मीरानीस के मिसरे सुना दो, कसम खुदा की मर्जियां पढ़ने वाले कुर्बान हो जाना। मीरानीस फरमाते हैं, जिन्नात मारे खौफ के मुंह ढांपते हैं आज, जिन्नात मारे खौफ के मुंह ढांपते हैं आज, हम क्या है जिब्राइल के पर कांपते हैं आज। हम क्या है जिब्राइल के पर कांपते हैं आज। ये अब्बास है, अली का बेटा है, वो भी मांगी हुई दुआ, जिस अली ने गोदी में पाल कर सानिए हैदर बनाया, जो अली के सामने अली बन के चलता रहा। अजीजाने मोहतरम, लोग कहते हैं कि अब्बास ने जो करबला में खत खींचा था वो मिट गया। अगर तेरे बेटे ने खींचा होता तो मिट जाता। यदुल्लाह के बेटे ने खींचा था, यदुल्लाह के बेटे ने खींचा था। और किसमें मजाल थी जो जरी के खींचे हुए खत को पार कर जाता। लोग कहते हैं वो निशान कहाँ है? वो निशान है फर्शादा। जो फर्शादा के करीब है वो जन्नती है, जो दूर है उसका कोई मददगार नहीं है। तुम तो खुद भी उम्मत नबी हो, डूबने वालों में से नूह का बेटा भी था, डूबने वालों में से नूह का बेटा भी था। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाला। अजीजाने मुहतरम, छठे इमाम एक मर्तबा यजीदियों के दरबार में जाते हैं। दरबार में जाने के बाद कहते हैं, अल्लाह ने हमें 7 चीजें अता की, जिनमें से 6 चीजों के जरिए हम लोगों की फौकियत करते हैं, लोगों को बुलंद करते हैं। अजीजाने मोहतरम, अजीब कयामत है कि हम और आप 1400 बरस से ये गम बनाते आ रहे हैं। न कल ये गम रुका था, न आज ये गम रुक रहा है। इसको मिटाने वाले खुद तबाह बर्बाद होते रहे, लेकिन इस गम पे कोई असर नहीं हुआ। अरे अलमदारे वफा, बाजू कटाने वाले मिट गए खुद तेरे परचम को मिटाने वाले।
मिट गए खुद तेरे परचम को मिटाने वाले। अजीजान मोहतरम, लोग फर्शदा की मुखालफत करते हैं, अलम की मुखालफत करते हैं। हमने कहा तुम फर्शदा की मुखालफत कर रहे हो, तुम जुलूस की मुखालफत कर रहे हो, तुम अज़ा हुसैन के मुखालिफ हो, फर्शदा की मुखालफत कर रहे हो। इसकी मुखालफत करने से पहले ये सोचो इसका बिछाने वाला कौन है। मैं क्या करूं, जरा गौर कीजिएगा। आइए 1400 बरस पहले गए, तारीख के सफों को था, 1400 बरस पहले गए, वहां में एक तारीख का वाक्य नजर आया जिसमें सैयद सज्जाद से यजीद कहता है, जो अपनी फुफू से जाके कहो कि हमने तुमको आजाद कर दिया, अब मदीने जाना चाहे तो मदीने जाए, शाम में रहना चाहे तो शाम में रहे। जनाब ज़ैनब कहती है हम मदीने वापस जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले यजीद से कहो हमें घर खाली करा के दे, हम अपने शहीदों का मातम करेंगे। आइए दोनों हाथों को जोड़कर बारगाहे बिनते अली में आए। ऐ जनाब ज़ैनब, अब आप कैदी भी नहीं है, आपके बाजुओं में रस्म भी नहीं है, फिर आप क्यों कह रही है कि मातम होगा तो ईद के दरबार में होगा। आपको रिहाई मिल गई, आपको मदीने जाने का परवाना मिल गया, आप नाना के रोज़े पे गिरिया कीजिए, अम्मा की मज़ार पे मातम कीजिए। आप ये क्यों कह रही है कि मातम होगा तो यजीद के घर में होगा। अजब नहीं, बिनते अली आवाज पे आज मैं तीरों की मौजूदगी में, तलवारों की मौजूदगी में, यजीद के होते हुए यजीद के घर में अपने भाई के गोश्त बिछा के बताऊंगी कि देखो आज यजीद के होते हुए यजीद ज़ैनब को मातम करने से न रोक सका तो कयामत तक यजीद की औलादे ज़ैनब के चाहने वालों को साथ मेराज बयां बोल रही है ज़ैनब, मेराज बयां बोल रही है ज़ैनब, खत्म है फस्ल कमा बोल रही है ज़ैनब। मिलके मेराज बयां खत्म है फस्ल कमा बोल रही है ज़ैनब। चुन रहा है अदबे नहजे बलागा लब से, चुन रहा है अदबे नहजे बलागा लब से, अपने बाबा की ज़बां बोल रही है, अपने बाबा की ज़बां बोल रही है ज़ैनब। 20 सावर के बहादुर के मुकर्रिर के खतीब, अरे कौन बोलेगा, कौन बोलेगा जहां बोल रही है ज़ैनब। ऐ यजीद, इससे बड़ी हार तेरी क्या होगी, वो तेरा घर है जहां बोल, वो तेरा घर है जहां बोल रही है ज़ैनब। अजीज़ान मोहतरम, छठे इमाम यजीदियों के दरबार में जाते, अभी मैंने कहा कि छठे इमाम यजीदियों के दरबार में जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ने हमें 7 चीजें अता की, जिनमें से 6 चीजों के जरिए हम लोगों की फौकियत करते हैं, लोगों को बुलंद करते हैं। और 7वीं चीज कि अल्लाह ने मोमिनों के दिल में हमारी मोहब्बत जिंदा रखी है। अजब नहीं, इमाम यजीद को बताना चाह रहे हैं कि सरों को काट कर जिस्मों पर हुकूमत करना तेरा काम है और रूहों पर राज करना हमारा काम, और रूहों पर राज करना हमारा काम है। अजीजाने मोहतरम, दुनिया आई और चली गई, लेकिन जिक्र सैयद शोदा ना मिटा पाई। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। अजीजाने मोहतरम, अब जब ये काफिला शाम के दरबार में पहुंचा है तो यजीद तख्त पे बैठा था। यजीद कह रहा था मैंने इसमें अली मिटा दिया, मैंने अली का नाम मिटा दिया। याद है ना जंग करबला बूज़े हुसैन में नहीं बूज़े अली में हुई थी। यजीद कह रहा था मैंने इसमें अली मिटा दिया, मैंने अली का नाम मिटा दिया, लेकिन वो गलत सोच रहा था। इमाम सज्जाद मुस्कुरा के कहते हैं वो मेरा भाई अली अकबर था। यजीद कह रहा था मैंने इसमें अली मिटा दिया। इमाम सज्जाद मुस्कुरा के कहते हैं वो मेरा भाई अली अकबर था, वो मेरा भाई अली अकबर था। जैसे ही यजीद ने सुना, यजीद एक मर्तबा बौखला जाता है। यजीद तक से उठा फिर बैठा, उठा फिर बैठा, उठा फिर बैठा। ये अमल उसने 3 मर्तबा अंजाम दिया। इमाम सज्जाद मुस्कुरा के पूछ लेते क्या बात हो गई। यजीद कहता अली कितने हैं, मैं तो तुम्हें में परेशान हूँ, 4 मिसरों में जुमला समेटने जा रहा हूँ। काफिला शाम के दरबार में जिस दम पहुंचा, जुल्मज़ादे ने कहा मुझसे तेरा नाम है क्या। अरे नाम है मेरा अली। मैंने जो जालिम से कहा तब सितमदार बहुत जोर से चिल्लाने लगा अरे मैं परेशान हूँ, ये नूरे जली कितने हैं, कोई तो मुझको बता दे कि अली कितने।
कोई तो मुझको बता दे कि अली किसने मेरे अली को यूं ही समझना मुहाल है, ये वो बयां है जिसका कभी तर्जुमा न हो। सलवात पढ़े पर मोहम्मद ऐ यजीद, तूने किस हुसैन को मिटाने की कोशिश की, किस हुसैन को मारने की कोशिश की? यजीद तू क्या सोच रहा है? कत्ले हुसैन कर दिया, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरी गलत सोच है, जुमला रहेगा ना होने पर। यजीद कह रहा था मैंने इसमें अली मिटा दिया। ऐ यजीद तू क्या सोच रहा है? तूने कत्ले हुसैन कर दिया, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरी गलत सोच है। तू जाहिरी तौर पे मिशन यजीद क्या सोच रहा था? मैंने इसमें अली मिटा दिया, मैंने अली का नाम मिटा दिया, लेकिन वो गलत सोच रहा था। तू जाहिरी तौर पे हुसैन का वजूद तो मिटा सकता है, अरे जुमला बदल के कहो, मिशन की जबान काट सकता है, मगर मिशन के दिल से अली नहीं निकाल सकता। इसीलिए तलवारें चलाई गई, नेज़े चुभे गए, यहाँ तक के जबानों को काट दिया गया, मगर फिर भी लहू का बेटा हर एक कतरा मिशन में कह रहा था अली हक है, अली हक है, अली हक है, अल हक को मा अली वो अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अरे तेरा मिशन ही तो कत्ते सहारे हैदर, तब मजा आएगा जब खून पुकारे हैदर हैदर सलावत पढ़े पर मोहम्मद लोग कहते हैं आप बस अली अली करते रहते हैं और कोई आपको मिलता ही नहीं। भाई बड़ों से जाके लड़ो ना, अल्लाह मियाँ से जाके लड़ो। कुरान में 313 आयतें अली की शान में क्यों नाजिल की? अल्लाह से जाके लड़ो। एक ही घर बनाए अपना, उसमें भी अली को पैदा कर दिया। भाई साहिब जुल्फ़कार अली व इमाम मुख्तार अली अल्लज़ी सम्मतनी अला उम्मे हैदर अली व साकिब हौज़ कौसर अली साहिब जुल्फ़कार अली इमाम मुख्तार अली अल्लज़ी सम्मतनी अला उर्जे हैदर अली व साकिब हौज़ कौसर अली मतलब कुल्ल तहार अली गालिब अला कुल्ल गालिब अली अल्लज़ी साकिब अली। भाई चांद सूरज सितारे सब बने अली के तसद्दुक़ पे। अगर कह दिया कि अली नहीं है तो फिर ये बताओ ये चांद कैसा, ये सूरज कैसा, ये जमीन कैसी, ये आसमान। जलवा दिखाते हैं। मीर अनीस फरमाते हैं पत्तो बुलंद बहरे बरो अंजुमो सहाब या अफलाक नूर जुल्मत महताब आफताब। अरे कुर्सी अर्श लोह कलम मोकिफो हिजाब दूबाओं को करो हूर कसरबाब। अरे किसकी सदा जहूर खुदा के वली का था, अब देखा तो हर मकाम पर जलवा अली का था, देखा तो हर मकाम पर जलवा अली का था। अजीजान मोहतरम आखिरी जुमला, इसके बाद आप ताज़िए की ज़राअत करेंगे। देखा तो हर मकाम पे जलवा अली का था। आप मुसलसल मजलिसें करते आ रहे हैं, आपने कभी सोचा वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी कुव्वत है जो आपको फरशादा के करीब खींचती है? अजीजान मोहतरम छठे इमाम फरमाते हैं, सलमान पढ़े पर मोहम्मद छठे इमाम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मज़जा फित्तीनते मोमिनिन तुरबत करबला। छठे इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने जब मोमिन की तीनत बनाई तो उसमें थोड़ी सी साजिश बरत दी। मैं क्या कर रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह ने जब मोमिन की तीनत बनाई तो उसमें थोड़ी सी खाकिश बरत दी। भाई जब थोड़ी सी रखी गई तो हुसैन के अदार बने, कुछ ज्यादा रखी गई तो कोई हुर बना, कोई जॉन बना, कोई सईद बना, कोई मीसम बना, कोई जुहैर बना, कोई मिक़दाद बना, कोई अबू बकर बना। सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद। इनके जिस्म वहां पहुंचे, हमारे जिस्म दफन बहिश्ते में कुलसूम में होंगे और रूह करबला में होगी, और रूह करबला में होगी। आपने कभी गौर किया वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी कुव्वत है जो आपको फरशादा के करीब खींचती है? आपको लॉकडाउन का जमाना याद है? बाप बेटे के करीब जाने को तैयार ना था, बेटा बाप के करीब जाने को तैयार ना था, रिश्तेदार रिश्तेदार के करीब जाने को तैयार ना थे।
फिर भी हुसैन के चाहने वाले उसी लॉकडाउन में ये कहते नजर आ रहे थे कि हमें जुलूस की इजाजत दे दो, हमें मजलिस करनी है, हमें मातम करना है, हमें मातम करना है, हमें जंजीरसानी करनी है, चलो करबला चले, चलो नजर चले। इमाम ने कहा इन्नल्लाह मज़जा फित्तीनते मोमिनिन तुरबत करबला, अल्लाह ने जब मोमिन की तीनत बनाई तो उसमें थोड़ी सी खाका शिफा रहती। फौरन साहिल खड़ा हुआ, इमाम से सवाल किया, इमाम मोमिन की तीनत में खाके छिपा? इमाम फरमाते हैं इसका सबूत भी तो मोमिन के पास है, लिजा तहन्नु क़ुलूबी शियती अल हुसैन, मोमिन की तीनत में खाके छिपा है, यही सबब है कि हुसैन के चाहने वालों के दिल हुसैन की तरफ खिंचते हैं। यानी खाक मजबूर करती है, चलो मजलिस में चले, चलो मातम में चले। भाई हमें इस वास्ते करबो बला की खाक प्यारी है, हमें इस वास्ते करबो बला की खाक प्यारी है, यहाँ पर खून जीता है, यहाँ तलवार हारी है। यहाँ पर खून जीता है, यहाँ तलवार हारी है। ये वो जमीन है जहाँ डूबते डूबते सूरज ने यह मंजर देखा, खून की धार ने खंजर का गला काट दिया। अजीजान मोहतरम, यही करबला की सरजमीन थी। जब यहाँ इमाम हुसैन पहुंचे, लोगों से पूछा इस जमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा शत्त फराज कहा जाता है, किसी ने कहा गाजरिया कहा जाता है। इमाम हुसैन ने कहा और भी कोई नाम है? कहा मौला इसे सरजमीन करबला भी कहा जाता है। बनी असद के लोगों को बुलाया, बनी असद से जमीन ली और बनी असद ही को दे दी। कहा बनी असद के लोगों, लो ये जमीन हम तुम्हें देते हैं। बनी असद के लोगों ने रकम देनी चाहिए कि मौला हमारा दिल गवारा नहीं करता। इमाम हुसैन ने रकम दी कि लो ये जमीन हमें दे दो। बनी असद के लोगों ने कहा मौला हमारा दिल गवारा नहीं करता कि हम आपसे रकम लेके जमीन दे। इमाम ने कहा नहीं, हम अहले बैत हैं, तुम्हें नहीं पता कल इस जमीन पे क्या होने वाला है। इमाम हुसैन ने वसीयतें करना शुरू की, बनी असद के लोगों को बुलाया, कहे बनी असद के लोगों याद रखना कल को हमें जब इस जमीन पे मार दिया जाएगा, लोग दूर दूर से हमारी ज़ियारत के लिए आएंगे। जब भी मेरा ज़ाहिर मेरी ज़ियारत के लिए आए तो याद रखना उसे किसी ज़हमत में मुब्तला ना करना, वो भूखा ना रहे, वो प्यासा ना सोए। मैं कहूँगा मौला ये आपके आशिक है, ये आपके मुहिब है, जो करबला की राहों में अपने आप को खादिम बना के पेश कर रहे हैं। कोई ज़ालिम के जूते साफ कर रहा है, कोई ज़ालिम की चप्पलें साफ कर रहा है, कोई इमाम की वसीयतों पर अमल कर रहा है। इमाम ने वसीयतें करना शुरू की, बनी असद की औरतों को बुलाया, वसीयतें करना शुरू की। बस थोड़ी सी आमद की और रखिए, आज शोदा करबला का 20वां है, आज गरीब ज़हरा का 20वां है। ये उसका गम है जिसकी बहन की हसरत भाई के लाशे पर रोना थी। इमाम हुसैन ने वसीयतें करना शुरू की, औरतों को बुलाया, कहे बनी असद की औरतों कल को जब हमें जमीन पे मार दिया जाएगा, तुम्हारे शौहर इन जालिमों की डर से ना आए तो तुम पानी देने के बहाने आना और हमारे यहाँ जिस्म को सरजमीन करबला पे दफन कर देना। इमाम हुसैन ने बच्चों को बुलाया, वसीयतें की, ऐ बनी असद के बच्चों कल को तुम्हारे माँ बाप इन जालिमों की डर से ना आए तो तुम खेलने के बहाने आना और मुट्ठी मुट्ठी खाक हुसैन के जज्बों पर डाल देना। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अला ज़हरा, तुम्हारे माल सलामत है ना, तुम्हारे नौजवान तुम्हारे घरों में सलामत है ना। अरे जरा रबाब से पूछो, जरा लैला से पूछो, जिसके करियर जवान के सीने में पर्ची की अनी वाह गुरबता वाले, अरे चलते थे चार दिन तुझसे भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर। अरे कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था। गिर कर कभी उठे कभी रखा कभी पत्थर, करवट कभी तरफ की इधर ली कभी उधर। अरे उगला लहू बहन से तो थामा कभी जिगर, अरे हसरत से की कयाम की जानिब कभी नजर। अरे गिर कर उठे जमीन से तो पर्ची के फल गिरे, कुछ और तीर कर गए जम्मू के बल गिरे।
وغربتا وعليها على لعنة الله على قوم الظالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين آمين رب العالمين ماتم حسین مولا سلامت رکھے.